So we are here. I have a show here. I am performing in Chembu Gymkhana, and the basic purpose is like this is for MTV Unplugged with Royal Stag. You all must have heard of this property of MTV, which is a very popular platform of presenting songs the way you'd like to hear in a different way than it's in the audio. For me, I was very excited about doing Unplugged for the song Kamli, because I actually conceived Kamli as a very soft song. Later in Dhoom 3, it went as a, you know, like a dance song. Like this, many songs you conceive in a very, because I compose with my guitar, and it's just only one guitar which I compose with, and the form the song is in, and while it goes into the final stage, there are lots of orchestration are added in it. So to to play the songs in its raw stage and to play it differently than it's in the audio, that's the specialty of this platform, where you can present the songs in your the way you want to present. I'm extremely happy to be a part of MTV Unplugged. I have been wanting to be a part of MTV Unplugged for very long. For last 2 seasons, we have been discussing the possibility of being a part of MTV Unplugged, but this year it has happened, and I will be closing the series. The season, this season, I'll be closing this season. My episodes will be up on 13th of February, hopefully, if I deliver on time. But I have short last, so it's I should end it. I'm extremely thankful to MTV. I'm thankful to everybody of MTV, including Jaggi, who actually waited and kept the set standing, because I delayed. I was busy with Dilwale Master, and after the Master finished, I jumped into it. And MTV, everybody at MTV, and MTV was kind enough to keep the set standing and incorporate my episode in this season. And I'm very happy with very happy with what I've done, and I hope you enjoy it when it comes on air on 13th of February. दादा आप जानना चाहेंगे आपसे कि आप इतने सारे इवेंट्स करते हैं और दिलवाले का म्यूजिक इतना बड़ा हिट हुआ है, तो एक आपकी कितनी बड़ी कोशिश रहती है कि आप एक इवेंट दूसरे इवेंट से बिल्कुल अलग कर पाएँ, और जो भी आपकी कंपोजिशन है एक बिल्कुल दूसरे से बिल्कुल अलग है, तो इतना ये सब बैलेंस आप कैसे कर पाते हैं? इवेंट में उतना अलग नहीं कर सकते, बिकॉज एक बैंड है, उनका प्रैक्टिस होता है, सबका काइंड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन होता है, क्योंकि परफॉर्मेंस इज ऑल अबाउट what everybody plays together. But इसमें I am because of it's a unplugged this is for MTV Unplugged. I'm not doing Unplugged here because it's the setup is not unplugged, but I'm doing lot more softer songs. I do in my other events. I do more dance songs. Here I'm doing lot more romantic songs. काफ़ी रोमांटिक गाने कर रहे हैं इधर. दादा जानना चाहेंगे आपसे कि इतने सारे लाइव परफॉर्मेंसेस करने के बाद आपको कोई भी एक चीज़ कमी किसकी खलती है कि ऐसा भी मैं कर सकता था, इवेंट के बाद आप सोचते हैं ऐसा कि कुछ ऐसा भी हो पाता या बहुत कुछ वो एक्चुअली लाइव परफॉर्मेंस लाइक प्रोडक्शन ऑफ लाइव परफॉर्मेंस वाइज हम लोग थोड़ा अभी भी काफ़ी पीछे है, बिकॉज हम लोग के पास उतना बजट नहीं होता है. बट ऑब्वियसली ये मैं ड्रीम करता हूँ कि एक दिन हमारे पास उतना बजट होगा कि हम एक रॉक कॉन्सर्ट जैसा होना चाहिए. पिंक फ्लॉयड जैसे कॉन्सर्ट करते थे, आजकल कोल्ड प्ले जैसे कॉन्सर्ट करते हैं वैसे, या मैरून 5 जैसे कॉन्सर्ट करते हैं वैसे, एक हाई प्रोडक्शन क्वालिटी कॉन्सर्ट
रॉक कॉन्सर्ट जैसा होता है वैसा करने का ड्रीम है जो लाइक करना करना चाहता हूँ। लाइव कॉन्सर्ट्स के दौरान ऑडियंस का रिएक्शन कितना मायने रखता है आपके लिए? जैसे वो खुश होती है तो क्या आपके गाने पर भी इसका असर पड़ता है? बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। एक्चुअली मैं ज़्यादा लाइव परफॉर्मेंस पहले नहीं करता था। आई हैव स्टार्टेड डूइंग लॉट मोर लाइव गिग्स नाउ। ऑडियंस रिएक्शन से एक हाई मिलते हैं, जो एक बोलते हैं एक नशा सा जो होता है ना, वो सबसे बड़ा मतलब द ग्रैटिफिकेशन ऑफ बीइंग in the studio constantly and giving constant hits, उसका जो एक ग्रेटिफाइंग एक्सपीरियंस जो उसका रिएक्शन मिलता है लाइफ में, वो ग्रेटिफिकेशन बहुत बड़ा होता है और वो बहुत इंस्पायरिंग होता है। हम आने वाले फ्यूचर में, आने वाले टाइम में आपकी कोई पर्सनल एल्बम जो आपको पर्सनल जो आपकी फेवरेट कंपोजिशन जो आप फिल्मों में नहीं डाल पाते हैं, कोई भी एक आपका जो आपने सोचा हो कि ये कंपोजिशन मुझे बहुत अच्छी है बट ये उस थीम से नहीं जा रही है, तो ऐसी भी आपकी पर्सनल एल्बम सुन पाएंगे आने वाले टाइम में कोई? ये मैं हर साल ड्रीम करता हूँ कि एक पर्सनल एल्बम, बट मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है अभी। फिल्में इतने हैं और उसका डिलीवरी भी बहुत है और उसकी वजह से टाइम कम मिलता है। बट डेफिनेटली मेरा माइंड में है कुछ एक खुद का एल्बम निकालना, और वो जल्दी आप सुन पाएंगे। जान पाएंगे वो कैसे नंबर्स होंगे, सॉफ्ट नंबर्स होंगे, रोमांटिक नंबर्स होंगे? ये हर तरह का आइडियाज़ है। अभी जो आइडिया लेके आगे बढ़ेंगे और एल्बम बनाएंगे तब मैं बोल सकता हूँ। अभी टू अर्ली है। अभी तो मेरा इस साल 5 रिलीजेस है, वो रिलीजेस का सब गाने रेडी करने में मेरे को पूरा साल निकल जाएगा। जानना चाहेंगे आपसे कि फिल्म के अकॉर्डिंग आप म्यूजिक देते हैं या जो आपका दिल करता है वो कंपोजिशन आप निकालते हैं? नहीं, एकदम फिल्म के अकॉर्डिंग म्यूज़िक देना पड़ता है, क्योंकि जब भी आप फिल्म म्यूज़िक डायरेक्टर हो, फिल्म का म्यूज़िक डायरेक्टर हो, तब वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जैक्टली जो डिमांड करता है फिल्म ऐसे करो। सो इसीलिए अगर मैं लव आजकल का म्यूज़िक कर रहा हूँ, उसमें मैं बर्फ़ी जैसा म्यूज़िक नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वैसा फिल्म का जो दायरा होता है वही आपको डिफाइन कर देता है कैसा म्यूज़िक होगा। जैसे लव आजकल में कैरेक्टर्स पंजाबी थे, लाइक वीर सिंह और सब पंजाबी थे, तो लव आजकल का म्यूज़िक का इन्फ्लुएंस काफ़ी पंजाबियत है उसमें, काफ़ी पंजाबी इन्फ्लुएंस है उसमें। whereas बर्फ़ी वॉज बेस्ड ऑन कैलकाटा 1970s दैट टाइम, लाइक सो उसका थोड़ा सा मीठा लाइक लिटिल ओल्ड स्कूल चार्म वैसा रखना पड़ा। तो अकॉर्डिंग टू द मूवी हर फिल्म का म्यूज़िक चेंज होता है, कैरेक्टर्स चेंज होता है। जैसे मेरा भी म्यूज़िक टेम्पलेट चेंज करना पड़ता है, बिकॉज नहीं तो फिल्म में फिट नहीं होता है। और मैं ये नोटिस किया हूँ फिल्मी म्यूज़िक के लिए, स्पेशली फिल्म म्यूज़िक के लिए, अगर कोई गाना आपके फिल्म के साथ नहीं जाता है तो वो गाना उतना एस्टैब्लिश नहीं करता, ना वो फिल्म को हेल्प करता है ना फिल्म उसको हेल्प करता है। तो इसीलिए बेहतर ये है कि आप गाना हमेशा जब बना रहे हो फिल्म के लिए, वो फिल्म के साथ जुड़े हुए बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जानना चाहेंगे आपसे कि कभी कंपोजिशंस को लेकर या स्टोरी लाइन को लेकर भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि जो आपकी पसंद रही हो या आपको लगता है कि फिट है और फिर भी उस कंपोजिशन को जगह नहीं मिलती, तो कितना मुश्किल हो जाता है? कभी कभी होता है कि गाने जो बहुत पसंद है वो बाउंस हो जाता है, कि मैं लड़ता हूँ उसके लिए, नहीं बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, बट उसके कुछ हद के बियॉन्ड नहीं लड़ सकते, बिकॉज अल्टीमेटली इज़ द डायरेक्टर्स मूवी, हिज विजन इज़ ऑल्सो अल्टीमेट। सो हमेशा मैं ये बोलता हूँ और ये बिलीव करता हूँ कि कोई भी फिल्म म्यूज़िक एक म्यूज़िक डायरेक्टर का हाथ नहीं होता है। अ फिल्म म्यूज़िक इज़ ऑल अबाउट कोलैबोरेशन बिटवीन द म्यूज़िक डायरेक्टर एंड द डायरेक्टर। ये कोलैबोरेशन जब वर्क करता है तब आपका म्यूज़िक सक्सेसफुल होता है। और ये कोलैबोरेशन आप जितना भी see, I am the same person giving music for multiple films. Lot of time the collaboration works, lot of time it doesn't work. Wish you all the best and Thank you. Yeah, thank you everybody. Anything else you would like to ask? Oh yeah. Can you introduce yourself? My name is Rajesh. I'm from What's on India. My question is, now you have an image. Everyone knows that Pritham sir, he's a veteran. He's a veteran singer, a veteran musician. So, what is the one kind of one genre that
I mean, if there are different choices of genre of song given to you, what's the one choice that you will say, हाँ ये मेरा है, मुझे सबसे पहले यही genre है जो मुझे करना है. Is there something like that? Yeah, of course. I have actually done over like I think 110th या 112 फिल्म चल रहा है मेरा, काउंट भूल गया मैं एग्जैक्ट काउंट, बट मैं हर जॉनर का फिल्म किया हूँ मैं. आई हैव डन डार्क रोमांटिक फिल्म, लाइक आई हैव एक्सटेंसिवली वर्क विद विशेष फिल्म भट्ट, मुकेश जी और महेश भट्ट के साथ, जो भट्ट साहब के साथ जो काम किया हूँ वो वैसा जॉनर का भी किया हूँ, उसके साथ पंजाबी जॉनर के किया हूँ, एक्शन फिल्म किया हूँ, रोमांटिक भी किया हूँ. बट मुझे पसंद है रोमांटिक फिल्में करना, रोम कॉम करना, या तो थोड़ा सा डार्क फिल्म जो विशेष फिल्म का जॉनर होता है वैसा, थोड़ा सा डार्क रोमांटिक, इंटेंस पैशनेट रोमांटिक, वो सबसे ज़्यादा पसंद है करना, इंटेंस पैशनेट रोमांटिक. अदरवाइज रोम कॉम वो करना पसंद है. ऑल्सो एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ आई हैव काइंड ऑफ डिसाइडेड कि आई विल try and stay away from action films and comedy films, where actually films from where music is not that important, because I'll say I prefer doing rom-coms more. And this unplugged version, I mean, this is not something we find it everywhere now. And MTV has something called unplugged that has, it is something unique which only MTV has. So anything about it? No, Unplugged is not unique to MTV. We have been doing Unplugged for very long. If you even before MTV Unplugged as a platform started, there have been unplugged versions of various songs floating around. Even in English, if, like a lot of bands have done unplugged version. But MTV Unplugged has given a face to that. Presenting that not only in India, worldwide, MTV Unplugged is extremely popular, and it is a platform to showcase a song in a different way. I think I love this platform, and I have enjoyed all the seasons in India, and I am glad and happy to be a part of it. All right, thank you so much. Brother, you have to go sound check. Ah. Thank you. I'm sorry I have to go for sound check, otherwise I would have spent more time with you. And Thank you guys. thank you. Yeah.